शुभ प्रभात। Yesterday, as we were discussing between the three brothers, Abhishek forecasted something. कल तीनों भाइयों के बीच में कुछ बात हो रही थी तो अभिषेक ने अनुमान लगाया And he very successfully passed on the translation to Ashish. उसने ट्रांसलेशन अनुवाद जो है आशीष को दे दिया And he said that essentially Ashish is going to preach. और उसने बोला कि आशीष प्रचार करेगा। So look out for those two sermons coming your way. अगर दो प्रचार आपके पास आता है तो आप उसके लिए आस लगा के बैठे रहिए। And he also titled this, a title that he gave is about the parable of the prodigal sons by a prodigal preacher. उसने शीर्षक भी दिया कि उड़ाव पुत्र का क्या प्रचार उड़ाव पासवान के द्वारा। Okay, quick exercise. Okay, what did we learn last week? एक एक्सरसाइज करते हैं, याद करें कि पिछले सप्ताह हमने क्या सीखा है। How can a young man keep his way pure? Okay, how does he do that? By meditating on his word. कैसे एक युवा व्यक्ति अपने मार्गों को शुद्ध रख सकता है उसके वचनों पर मनन करते हुए। What's the key word? It is meditating. प्रमुख शब्द क्या था उसमें? मनन करना। What does the word mean? उस शब्द का अर्थ क्या है? It is to ponder and to mutter. कि आप उस वचन पर ध्यान दें और उसको अपने लफ्जों में बार बार दोहराएं। And when the mind descends into the heart, that is what the psalmist says. तो यानी मन जो है मनन कर कर दिल पर उतर जाए, यानी उतना उतर जाए हमारे अंदर, उस विषय पर के बारे में लेखक कहता है। It basically means that we are called to exercise both our minds and our heart as we listen to the word तो कहने का तात्पर्य कि हमारा मन और हमारे दिलों को वचन से भरना जरूरी है, वचन का ग्रहण करना हमें जरूरी है। And it is very important because, as somebody said, meaning of the scripture is scripture. What essentially it means is that if we don't get the meaning right contextually, we don't get the word, we don't have the word. तो किसी ने कहा कि अगर हमें वचन की पृष्ठभूमि में जिस लेख में लिखी गई थी, जिस संदर्भ में लिखी गई थी, उस संदर्भ में अगर हमने वचन को नहीं समझा तो हम वचन कतई नहीं समझ पाएंगे। Else it would be just as you read, what you feel is what you think the word to be. ऐसा नहीं है कि जो आपको मन में आए, जैसे आपने वचन पढ़ा और जैसे आपको लगा वो वचन का अर्थ हुआ। So lean in and listen carefully. तो इसलिए आइए ध्यानपूर्वक बैठिए और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिए। So that after the meeting you can walk around, have some good discussions, and also ask, if you have any questions, ask Ashish. कि मीटिंग के पश्चात आप एक दूसरे से इसके बारे में वार्तालाप करें और सवाल है तो आप पूछें। We have been learning, about the topic of what is the gospel through our Bible study series for the last couple of weeks. और शनिवार के बाइबल अध्ययन श्रृंखला में हम सुसमाचार है क्या आखिर इस विषय पर गौर फरमाते हुए आए हैं। And when I was thinking about what to speak this morning, there was no better topic or sermon or a topic that would be in sync with what we are learning. तो जब मैं आज सुबह क्या प्रचार करूं इसके बारे में जब मनन कर रहा था, जब मंथन कर रहा था, तो मुझे लगा कि इससे और बढ़िया अध्याय भाग नहीं है जिससे कि हम जो हमने कल शाम को सीखा उसके साथ जोड़ पाएं। One of the things that we learned yesterday was that we all come from different backgrounds, we have different upbringings, and that shapes our understanding of who God is and ultimately what the gospel is. तो हमने क्या सीखा? पिछले रात को हमने ये सीखा कि हम सब विभिन्न प्रकार के संदर्भों से आते हैं, हमारी परवरिश अलग अलग प्रकार की है, हमारे स्तर अलग अलग प्रकार के हैं, और उसके बावजूद उस ऐसा होने के कारण हमारे परमेश्वर के बारे में समझ अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। And this is what we understand and this is what we have learned, that gospel is outrightly offensive. और हमने इस बात को देखा
कि सुसमाचार जो है सुनाए जाने पर लोगों को इतना अच्छा जल्दी प्यार से पचता नहीं है, because it doesn't settle into any of the categories that we have and our understanding of it. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुछ हमने अपने मनों में स्तर बना रखे हैं, उन स्तरों में, उन कैटेगरीज में सुसमाचार को हम बिठा नहीं पाते हैं। And that is what we are going to precisely look into this morning. और उस विषय को हम थोड़ा सा आज ध्यान देंगे। And this is one of the famous parables that it is not just famous within the Christian circle, but it is very, very famous across the globe. ये एक ऐसा उल्लेख है, एक ऐसी छोटी कथा है जो प्रभु यीशु मसीह ने कही है, जिसको सिर्फ मसीही संदर्भ में, मसीही जगत में ही नहीं जाना जाता, परंतु इसको कईयों लोगों ने, कई और प्रथाओं में, धर्मों में इसका लोगों ने इसको मान्यता दी है। And this is one of those parables that really drives home the point of what really the gospel is. और ये वो एक दृष्टांत है जो सुसमाचार आखिर है क्या, उसको हमारे सामने विवृत करता है, प्रस्तुत करता है। And we have heard this many a times, and I'm so glad that we are hearing it again. हमने इसमें से कई बार भाषण सुना है, और मैं आनंदित इस बात से हूँ कि एक और बार इसको हम दोहरा रहे हैं। Okay, quick question or a small activity. All right, I have been called to be a daydreamer when I was small. जब मैं छोटा बालक था और अभी भी मुझे ऐसा कहा जाता है कि मैं सपने देखने वाला इंसान हूँ। Right, we all do daydreamings, right? हम सब घर पे बैठ के ये सोचते हैं ना कि मोटापा अपने आप कम हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी सपने देखता हूँ। And we all have different things that we dream about. और हमारे पास अलग अलग श्रेणी के, श्रृंखलाओं के विषय वस्तु हैं जिसके बारे में हम सपने देखते हैं। Right, so if you were to think, and most of us would have thought about this, I'm sure, at some point in time, about what if the richest man in the world was our father. कईयों बार ऐसे हम में से कईयों ने ये सोचा होगा कि हमारा पिता आखिर ऐसा कोई हो जाता जो अमीर, इस संसार का एक अमीर व्यक्ति होता। Because whenever we go to our father, they will say, oh no, it can't be done, it can't be bought. क्योंकि कईयों बार जब हम अपने पिताजियों के पास जाते थे तो जवाब नहीं आता था, पैसे मांगने की बारी आती थी तो जवाब आता था, अभी नहीं, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। So if you were to become the sons and daughters of the richest man in the world, what would you do? अगर हम इस संसार में एक अमीर पिता के संतान हो जाते तो हम क्या करते? This is a question. ये I'm sorry? Oh, charity. Nice. Okay, what else? Audio. डेवी काम छोड़ के घर बैठ जाते। Travel the world. Buy anything that we want. Buy anything what we want. These are all very what? True answers. ये True answers of how we think. ये जवाब धन दौलत दे दिया, very good. ईश्वर का धन्यवाद देते कि उसने हमें इतने पैसे दे दिए। Did you realize this is how our heart operates? ये हमारा हृदय का चलन है, इस प्रकार हम सोचते हैं। Things about what we want from the Father, but none of us would ever think as to how to love the Father or know Him more. हम उसके बारे में सोच पड़ते हैं कि हम क्या करते अगर हम धनी पिता के संतान होते, परंतु इस बात पे चूक जाते हैं कि अगर हम वैसे एक पिता के संतान होते तो पिता को हम कैसे प्यार करते। And this is no different for you, this is no different for me, because this is how we think. इसमें कोई अलगाव नहीं है। मैं जो प्रचार कर रहा हूँ मैं भी ऐसे ही सोचता, आप भी ऐसे ही सोचते, सभी जन ऐसा ही सोच रखते हैं। None of us sitting here, until we became parents, we never understood the real meaning of what do we mean by unconditional love. जब तक कि हम माता पिता नहीं बन गए तब तक हम बशर्ते प्रेम को हमने कभी समझा नहीं, हम उसकी अहमियत को, उसके अस्तित्व को हम समझ नहीं पाए। Shija always says that usually when we preach we always do a guilt trip.
शीजा कहती है कि अभिषेक और अभी जो प्रचार करते हैं तो वो इस प्रकार प्रचार करते हैं कि दोषी ठहरा देते हैं सुनने वालों को। That's not the point. The point is for us to search our hearts this morning and to really understand that where do we stand in relationship with our Father. बात ये नहीं कि आपको दोषी ठहरा कर घर वापस भेज दें ताकि आप संकोचित हो जाएं, शोकित हो जाएं, परंतु बात ये आज सुबह कहना चाहता हूं कि सुनने के पश्चात हम अपने जीवनों को एक बार जांचें, परखें, टटोलें और एक ऐसा जांच करें जिससे कि हम एक अलग पड़ाव पे आ पहुंचे अपने मसीह जीवन में। And this is so deep and extensive a topic that it can't be really justified in covering it within one message this morning. और ये इतना गहरा है, इसकी सत्यावस्था, इसको अगर हम इसमें प्रचारें तो सिर्फ एक प्रचार पर सीमित करके रखना असंभव है। So through this parable, what I intend to do this morning is to cover these three aspects. तो इस दृष्टांत में ऐसे जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, तीन बातों को आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ। One is the lostness of man, पहला, मनुष्य का खोयापन, and then there is a God who seeks. और उसके बाद एक परमेश्वर जो खोजी है मनुष्य, इस खोए मनुष्य का, And why Jesus is the only Savior. और तीसरा कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है। Lostness of man. खोएपन, मनुष्य का खोयापन। Very interesting as we read chapter 11 and verse 1 and 2. अगर आपने देखा कि 11वें अध्याय उसका 1 और 2 हमने पढ़ा था। Now the tax collectors and the sinners were all drawing near to him. और वहाँ पे हम देखते हैं कि जो वसूलने वाले हैं, चुंगी लेने वाले हैं, टैक्स इकट्ठा करने वाले हैं और पापी, दोनों गुट के, दोनों तबके के लोग उसके पास आते हैं। They were drawing near to him to do what? वो उनके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और आते क्यों हैं? क्या कारण है? To hear him. कि उसको वो सुने। And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "This man receives sinners and eats with them." तो जब वसूलने वाले और पापी प्रभु यीशु मसीह के आस पाते हैं, फरीसी और शास्त्री जो धर्म के अगुए हैं, यहूदी धर्म के अगुए हैं, तब जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे थे, वो बुड़बुड़ाने लगते हैं, वो अंदर अंदर कोसने लगते हैं। Evidently, there were two distinct groups that we could see there, isn't it? तो यहाँ पे आप दो श्रेणी के लोगों को, दो गुट देख सकते हैं। One was what? The tax collectors and the sinners. पहला गुट वो जो पापी और चुंगी लेने वाले, यानी पैसा कर वसूल करने वाले हैं। And the group two was the Pharisees and the scribes. और दूसरा श्रेणी, दूसरा गुट जो है वो धार्मिक लोग हैं, फरीसी जो वहाँ पे रहते थे और शास्त्री जो धर्म के अध्ययन करा करते थे। It is very important for us to understand who these Pharisees were and the और scribes. तो यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है कि ये फरीसी आखिरकार कौन ऐसे लोग थे ये? The scribes were the one who used to write the scriptures, and the Pharisees were the one who used to teach in the synagogues. जो शास्त्री गण थे वो थे जो लेख, वचन का जो एक लेख होता था उसको वो लिखते थे और कॉपियां बनाया करते थे, परंतु फरीसी जो थे वो वचन के सिखाने वाले हुआ करते थे। So these were the religious elite of that society. तो ये वो लोग थे जो धर्म के जानकार थे, धर्म के जाने माने लोग थे, उस ऊंचे तट के लोग थे। So if you were to see at this scene and say how many kinds of people were there? There were the good people and the bad people. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो वहाँ पे हमारे अगर हम अपने नज़रों से देखें तो हम कहेंगे यार ये तो दो गुट हैं, एक वो लोग जो बहुत अच्छे हैं, धर्म के लोग हैं, और एक वो गुट जो पापी हैं जिनको हम अपने से दूर रखना चाहते हैं। Do we think any other way? आप इसको कुछ और तरीके से सोच सकते हैं क्या? Other than, is there any other categories in our mind? कि ऐसा Other than कोई good और people तबका and bad आपके people? नजर में यहाँ पे आ रहा है या नहीं? Who were drawing near and listening to Jesus? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के समीप आ कौन रहे थे? आकर्षित होकर खिंचे हुए कौन प्रभु यीशु मसीह से सुनना चाह रहे थे? The tax collectors and the sinners. कर वसूलने वाले और पापी जो थे। Interesting, isn't it? यहाँ पे ये बहुत ही रोचक एक बात कही गई है, आप समझने की कोशिश करें। We need to understand what's happening here because Jesus
Did he tell only one parable or did he say more parables? क्या सिर्फ यहाँ पे इस बात को समझना जरूरी है? सवाल ये कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही दृष्टांत दिया या अनेकों दृष्टांत दिए? He tells them three parables and all of them there is one theme. What is it? यहाँ पे Something that was lost but now is found. यहाँ पे इस अगर आप इस अध्याय को ध्यान देंगे तो एक दृष्टांतों की श्रृंखला देख सकते हैं और इसमें चलने वाली प्रमुख विषय जो है कि एक कुछ जो खो गया है उसको फिर पाया गया है। What's the first one? It's the parable of the lost sheep. पहला क्या है? पहला दृष्टांत उसका कि एक भेड़ जो है वो खो गई है। How many were lost? वहां पे भेड़ कितने खो गए? How many were there? कितने भेड़ खो गए थे? It was 100 sheep and lost one. वहां पे कहा गया है कि 100 भेड़ें थी, उसमें एक हो गई। And you need to understand that Jesus always talks in context of that culture and how things were and what really mattered to the people. And we need to understand that all of them could understand what he was meaning and what he was saying. प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हवाई में बात नहीं कर रहे थे, वो वहाँ के संदर्भ अनुसार, वहाँ की परिस्थिति अनुसार, वहाँ के लोगों के समझ के अनुसार वो इन उपमाओं को यानी इन दृष्टांतों को उनके समक्ष पेश कर रहे थे। Sheep were a big deal. उन समयों में भेड़ों का एक महत्व था उन जगहों में। And even one sheep mattered and they got the point. एक भेड़ का खो जाना उनके लिए महंगा पड़ता था, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ये दृष्टांत कि एक भेड़ खो गई वो उनके मनों में लगा होगा। And when it was found, there was what? Rejoicing and there was a party. और जब वो भेड़ पाई गई तो वहां पे एक आनंद का, एक उल्लास का एक परिस्थिति को हम देखते हैं। 1 out of 100, what percentage it is? 1%. 100 में से एक निकल गया, 1% ही तो कटा, परंतु 1% की भी प्रभु यीशु मसीह के नजर में मान्यता थी। Second parable is of the lost coin. उसके बाद दूसरा उस श्रृंखला में हम उस दृष्टांत को देखते हैं जहां पे एक सिक्का खोया गया। How many lost? कितने सिक्के खोए गए And how many found? कितने सिक्कों को वहां पे हमने वहां पे देखा कि वो मिला, वापस मिला। It is 1 out of 10. 10 सिक्के में एक सिक्का खो गया। It was wealth and it was a big deal and everyone got the point. और वहां पे सबने इस बात को समझा क्योंकि वहां पे पैसे की महत्व थी, सिक्कों की महत्व थी, तो एक भी खो जाना महत्वपूर्ण था और उसका मिलना उससे यानी उल्लास जगाने वाली बात थी। And when it was found, there was rejoicing and there was a party. और वहां पे हम देखते हैं कि लोग उसके आनंद में खुशी मनाते हैं। वहां पर 1 out of 10, what's the percentage? 10%. एक में से 10 में से एक निकल जाए कितना प्रतिशत? 10%। Till now, very relatable, right? The sheep, the coin, everything going fine. मतलब अब तक जो श्रृंखला की दृष्टांतों में जो बात कही गई है हम उसको कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े रूप में समझ सकते हैं। Now he talks about the third parable that we are going to look into. That's the parable of 2 sons. तो इस दृष्टांत की श्रृंखला में तीसरे दृष्टांत पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 पुत्रों की कहानी कही गई है। How many are lost? इसमें कितने खो गए हैं? Visibly. 1. 50%. मतलब आप पढ़ने पर एकाएक पढ़ने पर आपको समझ में आएगा कि 50% खो गए, यानी इसमें से 2 में से एक खत्म हो, एक चला गया है, खो गया है। And when he is found, the father what he does? He rejoices and there's a party. तो जब वो पाया गया है तो आप अगर ध्यान देंगे लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में कि जब ये बालक वापस आ जाता जो खो गया है, उस पिता की खुशी को, उसके उस प्यार को आप उमड़ते हुए देख सकते हैं। But is there full rejoicing? परंतु सवाल यह है कि क्या यहाँ पूर्णतः एक आनंद मनाया जा रहा है या नहीं? Jesus in a short while, what is he going to do now? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं? He was going to get to the heart of the story. और वो वहां पे उस कहानी की एक मध्य में, उसकी जो कहानी का जो केंद्र बिंदु है वहां पहुंचेगा। And he will show that it was not the 50% that was lost, it was 100% lost. तो वो वहां पे पहुंचकर इस बात को कहना चाहता है सुनने वालों को, अपने सुनने वालों को कि 50% खो नहीं गए थे, 100% खोए हुए थे। Both the sons were lost. क्योंकि दोनों ही पुत्र खो गए थे।
And this was baffling to the Pharisees who were listening in. और जो फरीसीगण ये जो सुन रहे थे, धर्म के अगुए जो ये इन बातों को सुन रहे थे, वो चौंक गए इस बात को सुनकर। Let us dive into the parable. तो यहाँ पे आइए इस दृष्टांत को जरा ध्यान से देखें। And before we get into this parable, we need to know that this setting is a Middle Eastern setting. जब हम इस दृष्टांत पर ध्यान देंगे तो संदर्भ याद करिए, मध्य पूर्वी इलाके के बारे में इस संसार में जो मिडल ईस्ट के नाम से जाना जाता है, गल्फ के नाम से जाना जाता है, उन इलाकों के संदर्भ में रखी गई ये कहानी। And it was a shame and honor culture. एक ऐसा संप्रदाय जहां पर आदर और अपमान के हिसाब से लोग एक दूसरे को नापते थे। Honor of the family and the traditions superseded than the individual. यानी व्यक्तिगत तौर पर व्यक्तिगत सफलता के ऊपर पारिवारिक आदर ये महत्वपूर्ण था वहां के लोगों के लिए। The individual was indispensable, but not the culture. व्यक्तिगत तौर पर आपको छोड़ा जा सकता था, परंतु परिवार आप उसको छोड़ नहीं सकते थे। परिवार के सम्मान के लिए आप अपने जीवन को जीते। I'm glad that we would understand this better. मैं इस बात से मुझे इस बात का आनंद है कि हम इस बात को, इस संदर्भ को समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा भी संदर्भ कुछ ऐसा है, Because we come from a similar culture. क्योंकि हमारा भी संप्रदाय इस प्रकार का है Don't we say that to our children? कि हम अपने बच्चों से भी कहते हैं, Do not do that. It will bring shame to the family. तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करने से परिवार का नाम नीचे जाता है। And he said there was a man who had 2 sons. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत शुरू करते हुए कहता है कि एक पिता के 2 पुत्र हुए। And the younger of them said to his father, Father, give me the share of the property that is coming to me. उसमें छोटे वाले ने पिता से कहा, पिता अपने जगह का, जायदाद का आधा हिस्सा मुझे दे दो। This was unheard of in Jewish tradition. यहूदी संप्रदाय में ऐसा एक छोटे बालक का करना अनसुनी सी बात थी, ये कतई मुमकिन सी बात नहीं। No son would behave that way, let alone the younger one. क्योंकि वहां का संप्रदाय उस प्रकार का था, तो छोटे बालक जो भी हो, ऐसे पिता के साथ वो कभी भी नहीं पेश आ सकता था। ये एक बदसलूकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। Property division or inheritance related any conversation was only related once the father was dead. पिता के जीते जी जायदाद का बंटवारा एक विषय नहीं था, उस पर कोई बातचीत नहीं थी। पिताजी के चले जाने के बाद ही बंटवारे पे कोई बात हुआ करती So थी। in effect, what was the younger son saying? तो यहाँ पे छोटे बालक ने जब ये कहा कि हे पिता, अपने जायदाद का आधा हिस्सा मुझे दे दो, तो छोटा बालक अपने पिता से कहना क्या चाहता है उस संदर्भ में? He was in effect saying that you are as good as dead to me, just give me my stuff. तो वो ये कहना चाहता है कि तुम हे पिता, तू मेरे लिए मर सा चुका है, अब तू हो या ना हो, जायदाद मुझे दे दो, मैं चला। Because if you were dead, I would get my freedom. I would get to do what I like. क्योंकि जब तू खत्म हो जाए तो मैं अपनी आजादी में जो मन चाहे वो मैं कर सकता हूं। So now since you are alive, I am stuck. So why don't you cut me loose and give me what's coming to me, what is my portion? पर बात ये कि तू जिंदा है, तो इस कारणवश मुझे अपने से हटा दे, जायदाद का आधा हिस्सा मुझे दे दे, मैं चलता बना। And he divided his property between them. और पिता ने वहां पे देखो क्या किया कि उसने जायदाद को बंटवारा किया। You need to understand that the Pharisees, as they listen in, they are not able to relate to any of these characters because that is not how the tradition was, neither with the sons, not with the father as well, because this is a shameful father in their sight. तो जब हम ये कहानी बोल रहे हैं तो अब फरीसी दूसरे आयत 15वें अध्याय दूसरे आयत को ध्यान दीजिए। फरीसी और शास्त्रीगण जब प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण को बोल रहे हैं, इस दृष्टांत को कह रहे हैं, तो वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कहानी है क्या और आखिर इसकी ये कहाँ रहा है। And when the property was divided, the division used to work in terms of the 1/3 and the 2/3. So the elder one is going to get the higher portion. It was never 50-50. तो जब बंटवारा होता है आखिरकार जायदाद का, तो बड़े बालक को, पहलोटे को 1/3 मिलता था और छोटे वाले को 2/3 मिलता था। The reverse. सॉरी,
छोटे वाले को 1/3 मिलता था, बड़े वाले को 2/3 मिलता था। That is how the inheritance split worked then. और उस समय जो जायदाद जो है उस प्रकार बंटवारा हुआ। We read on, not many days later, अब हम पढ़ते हैं कि ज्यादा दिन, which verse? verse 13. 13वीं आयत में अगर आप 15वें अध्याय, अब बहुत दिन नहीं बीते थे। What do we mean by that? It was a very short time between which he had demanded and between which he left the place. तो कहने का मतलब उसने जो अपनी संपत्ति बंटवारे की में मांगी और वो जब अपने 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 मार्ग लेके निकल गया, इस बीच में अंतराल बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत कम सा And we अंतराल था। see that the father has to sell his assets to get that money generated for this guy. और हम जानते हैं कि पिता ने अपने अपने जो उसके वस्तु थे उसको बेचा, जायदाद बेचा, उसको पैसे बनाए, पैसे बना के उसको थमाए। And the younger sons, I want it and I want it now. छोटा बालक कहता है मुझे अभी चाहिए, जिद सा पकड़ लिया, अभी चाहिए, मुझे अभी दे दो। The younger son gathered all he had. तो यहाँ पे जो छोटा बालक है उसने सारा कुछ बटोर लिया जो उसके पिता उसने उसको दिया था। You know, what's the expression there? That he gathered everything wherein there was no intention to return back. कि उसने इस प्रकार बटोरा, या मानो ऐसा कि उसका वापस आने का कोई मनसा नहीं है। He was sick of his home and of his father. उसके पिता से और वो अपने घर से ऊब सा चुका था। And he took a journey into where? और To वो a far country. और वो यात्रा ले लिया, और कहाँ? एक दूर दराज इलाके में, एक दूर दराज देश में। What is far country for Israel? इज़राइल के लिए दूर दराज क्या है? It is foreign land. एक ऐसा देश जो उसके लिए बाहरी है। How far or near was not the issue. The कितना fact that it was out of the land of Israel, what it meant by that he went to a far country. तो कितना दूर कितना निकट उससे नहीं, ये इज़राइल से बाहरी देश है, इस बारे में यहाँ पे कहा गया है। Because their experience outside of the land of Israel was what? Captivity. उनके अगर इज़राइल का अनुभव क्या रहा, इज़राइल को जब भी वो अपने देश के बाहर गए तो वो बंधुए बन के दूसरे देशों में, प्रांतों में गए। It meant danger. उनके लिए वो खतरा था। It meant no freedom. इसके लिए उनके लिए उनका मतलब ये, उसका मतलब ये हुआ कि उनकी आज़ादी उनसे छीन ली गई। And there he goes and he squanders away तो all this अपने property. देश को, अपने बाप के घर को, अपने घराने को छोड़कर ये छोटा बालक दूर दराज देश में जाता है। कहने का मतलब इसने सब कुछ जो उसका है और जो उसका उसकी उन्नति के लिए छोड़कर अपनी बर्बादी की ओर बढ़ता है। If we were true to ourselves, there has been a point in our lives wherein we have thought this way. Maybe we haven't acted that way. कईयों But बार in our hearts we have rebelled because we are rebels. अगर हम अगर अपने जीवन से सच्चाई में सवाल करें तो शायद ऐसा हो सकता है कि कईयों बार हमने अपने जीवन में, कई बार नहीं तो एक आध दो बार तो ऐसा सोचा है, काश मैं यहाँ से दूर होता या दूर होती, काश मैं मुझ में थोड़ी सी और आज़ादी होती, काश मैं अपने मन मर्जी कर सकती थी या कर सकता था। We know stories in our own families, right? Where we have wayward children, they go out because they want to. हम अपनी कहानियों, अपने परिवारों में ऐसे बच्चों को देख लेते हैं जो अब मन बनाकर दूर चले जाते हैं, परिवार से अपना सारा संबंध तोड़ देते हैं। We see men and women, and very especially people at a very young age, what do? When they start to understand the world around them, and when they start to get these financial freedoms and the freedom that they have, what do? They visibly turn their backs to God. हम जानते हैं कि जब हम युवा समयों में होते हैं, जब हम अपने, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, पे अपने पैरों पे खड़े होने लगते हैं, तो हमको मन करता है कि हम अपने तौर तरीके से जीवन जिएं। हमें मन करता है, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कि एक्सपेरिमेंट विथ लाइफ, जीवन के साथ हम कुछ ऐसा करें जो अलग सा लगे और उसमें मजा कुछ अलग ही आए। Like the defiant young man, what was he saying? That Yeah. I want to live my life on my terms. यहाँ पे जैसे ये छोटा बालक जो है
कहना क्या चाह रहा है? मैं तो अपने मर्जी का मालिक हूं, तू कौन है मुझे बताने वाला? मुझे मेरा भाग दे, मैं चलता बना। I want to be free under no rules or authority. मैं आजादी मांगता हूं, मुझे तेरे नियम, तेरे घर का नियंत्रण मुझे नहीं चाहिए। I want to blot you out or any thought of God from my life because I don't want you to control me. मैं नहीं चाहता कि है पिता तू मुझ पर अपने नियंत्रण को रखे। We have been studying Romans over the last few weeks. हम कुछ सप्ताह पहले तक रोमियो के पत्री से अध्ययन करते हुए आए हैं। What does Romans 1 say? रोमियो का पत्री 1 अध्याय It is क्या कहता है? exactly true of men and women in general that although they knew God, they neither glorified Him as God nor did they give thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. तो रोमियो अध्याय उसका 1:21 में क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मनुष्य के साथ क्या हुआ है कि मनुष्य प्रभु को महिमा देने में चूक सा गया है और वो प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहा है। In fact, all that this man had was what? It was a father's provision. क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे जो कुछ भी इस बालक लेके गया है ये तो सिर्फ पिता की देन है। Dear ones, what we have is what? Our Father and our God's provision in our lives. हमारे पास जो भी है, हम आज जो भी हैं, ये परमेश्वर की दी हुई देन है, उसका अनुग्रह है। The very mind with which you deny Him उस मन is the same mind that He has gifted you. उस मन से जिससे कि हम उसको तिरस्कार करते हैं, वो मन भी उसका देन है। The very talents and the gifts basis which you think you can make it out on your own, it is God given. वो सारे गुण जो आपके हमारे में हैं, जो जिससे हमको लगता है कि हम अपने से अपनी जिंदगी बना लेंगे, पैरों पे खड़े हो जाएंगे अपने, ये वो भी प्रभु का देन है। Everything that you see and everything that you enjoy comes to you from the Heavenly Father. जो आपका है, जो आपके पास है, जो आपको दिखता है, ये प्रभु का देन है, आपका स्वर्गीय पिता का दिया हुआ है। That is why it is such a tragedy when we see men and women waste their substance and squander away, because your life isn't yours to waste. तो It ये- is God given. तो ये त्रासदी नहीं हुई क्या कि अब आप एक मनुष्य को, एक पुरुष और स्त्रियों को, अपने जीवनों को, अपने जीवन के अस्तित्व को ऐसे ही गवा देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये गलत हुआ? God gave you your life in order that you might glorify Him and enjoy Him प्रभु ने forever. आपको आपके जीवन दिया कि आप उसकी महिमा करें और आप उसके लिए अपने जीवन को जिए। The far country that he thought would bring him freedom finally enslaves him. to वो ruin. जो दूर दराज देश जहाँ पे उस छोटे बालक को लगा वो आज़ादी के साथ अपने मन का मालिक बन के, अपने मर्जी का मालिक बन के जिएगा, वो वहाँ पर जा पहुँचा। Verse 14 to 19. वहाँ When he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hid himself out to one of the citizens of that country, who sent him into the fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger. I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants." 14वीं आयत से अगर आप देखेंगे तो संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ कि उस दूर दराज देश में जहाँ पे आज़ादी खोजता हुआ, मनोरंजन खोजता हुआ जब बालक गया, वहाँ पे अकाल पड़ी और वहाँ पे एक कृषिकार ने इसको खेतों में सुअर चराने की काम दिया। जब इसके पास पैसे खत्म हो गए, वहाँ पे जब वो भूखा बैठा, तो उसने याद किया कि मेरे बाप के घराने में भर पेट सेवक भी खाते हैं। तो उसने सोचा कि मैं उठ खड़ा होता हूँ और अपने घर वापस रवाना होता The हूँ। boy who was once sick of home is now homesick. यहाँ पे वो बालक जिसको अपने घर से एक प्रकार की परहेज थी, अब वो घर
जाना मांग रहा है। He remembers his father. वो अपने पिता की याद में है। Once he had spent everything to the last dime, जब उसने सारा कुछ निकाल दिया अपने हाथ का, पिता का दिया हुआ सारा पैसा गवा दिया, आखिरी सिक्का तक गवा दिया। if there is anyone here who is on that journey of self-discovery, अगर ऐसा कोई यहाँ पे बैठा हो जो ये कहता हो कि मैं अपने खोजी हूँ और अपने मन में जी रहा हूँ, if you haven't gone that far, it's a good time to return to your तो father. अगर आप ये अनुभव अगर आपका नहीं है और आप कहीं बीच रास्ते पे हो, तो मुड़ जाओ, वापस आ जाओ। Else it might take a pigsty experience, and for you to reach your absolute depth in your life, to the lowest point in your life, for you to remember your heavenly यहाँ पे Father. ध्यान देने वाली बात है कि छोटा बालक जो है उसका अनुभव क्या था। वो सूरों के बीच में था। यहूदी के लिए सूअर जो थे हराम थी, और उनके बीच में जा पहुंचता है। ऐसी अवस्था, ऐसा घिनौना परिस्थिति इस बालक का है। कहने का तात्पर्य हमारे जीवन भी ऐसी परिस्थिति से ना पहुंचे, उससे पहले रुकिए, सोचिए, जांचिए और मुड़ जाइए। But does every low point in our life bring us back to the Christ? परंतु क्या हर ऐसा अनुभव जैसा छोटा बालक गया है, क्या ये सिर्फ हमारे लिए ये काफी है कि हम प्रभु की ओर मुड़ जाएंगे? Verse 16, he was starving to death, and it's very interesting that although he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, nobody gave him anything, and apparently he did not eat the stuff. वहां पे अगर आपने ध्यान दिया हो 16वीं आयत, जिन फलियां सूअर खा रहे थे, उन फलियों को खाकर पेट भरने की मनसा तक पहुंच गया था। What if he had that stuff? अगर उसने वो खा लिया होता तो क्या होता? Or maybe somebody came along with a bag of chips and sandwiches. या कोई चलता हुआ राही उसके पास आता है, कहता है ये लो चिप्स हैं, सैंडविच हैं, Just good enough or enough to keep him comfortable in that pigsty. तो ये शायद ये होता कि इन सूअरों के बीच में कुछ काम चल जाता उसका, मरता नहीं। So hence it is very important for us to understand that for not everyone who finds themselves in a predicament such as this discovers it to be a time of realization and repentance. तो ये बात जरूरी नहीं कि किसी का अनुभव अगर ऐसा हो तो क्या वो जरूरी है कि पश्चाताप का अनुभव करे, जरूरी नहीं है। Instead, some individuals it becomes quicksand, sucking them into even deeper degradation. परंतु कई अनुभव ऐसे हैं कि ऐसे परिस्थिति होने के बावजूद लोग उसमें से उभर नहीं पाते हैं, परंतु दलदल का अनुभव सा हो जाता है, वो नीचे और खींचते चले जाते You हैं। might be struggling in your heart today, this morning. मैं नहीं जानता, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अपने दिल में शायद परेशान हो सकते हैं। And you might be asking the right questions, but we are too comfortable in the pigsty that we live. तो हो भी सकता है कि सवाल भी सही कर रहे हो, परंतु हम शायद आराम सा पा चुके हैं जो हमारी परिस्थिति है, इसलिए हम उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते, मन फिराना भी नहीं चाहते। What would it look like? तो ये यहाँ पे कैसा लगेगा, ये इसका अनुभव कैसा होता, ये कैसा दिखता? It can be a good job. It ये- can be a good house. It can be a good income. ये It can be the freedom to travel. ये It ऐसा can हो be सकता freedom है। to do anything and everything. ये अनुभव ऐसा हो सकता है कि एक अच्छा काम है हमारे पास, अच्छा घर है, घराना है, हमारे लिए यात्रा में जाने का अनुभव है। कई ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो हमें ऐसे जताए कि परिस्थिति अंदर खराब तो है, पर काम चल रहा है, ठीक है, Oh, चलने things दो। are moving just fine, and there is no need for me to go back to the Father. चल तो रहा है काम, अब इससे में क्या और जोड़ना, अब मुड़ के क्यों पिता की ओर जाना है। But after this man lost his money, his freedom, and his self-respect, he refuses to dehumanize himself further, and he remembers his father. तो यहाँ पे इस पुत्र की अवस्था ये है कि सब कुछ जो उसके पास आया उसने गवा दिया, अपने घर को भी उसने छोड़ दिया। अब वो सोरों के बीच में उनके भोजन खाने के तक आ पहुंचा है, यानी उसकी मनुष्यत्व जो है
वो भी यहाँ पे खत्म सी होने लगी। अब वो इंसान नहीं रहा, जानवर कुछ ज्यादा दिख रहा है, परंतु वहां पे वो रुकता है और अपनी परिस्थिति को जांचता है और मुड़ जाता है। This is the truth of our lives, that no matter where we are and how we are stationed, as Augustine said, that, O Lord, you have made us for yourself, O God, and our hearts are restless until they find their rest in you. प्रभु के दास अगस्तीन ने यूं कहा है कि हे प्रभु, तूने हमें अपने लिए बनाया है, और जब तक कि हम आपके पास ना आ जाए, आपके साथ ना मिल जाए, हमारे हृदय विचलित रहेंगे। And he arose, verse 20, and he came to his father. अब 20वां आयत देखिए, वो उठता है और वो अपने पिता के घर रवाना होता है, अपने पिता के घर पहुंचता है। And this is a very important picture that we need to understand and carefully listen in. और ये एक बहुत अच्छा चित्र है जिस पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। What a picture of wretchedness. You see this young man, his clothes are torn, यहाँ पे probably not taken a shower in days or months. यहाँ पे इसकी दुर्गति देखिए, कपड़े छिथड़े हैं, शायद नहा नहीं पाया हो, शरीर में साबुन लगे, समय भूल गया हो, ऐसी परिस्थिति में ये वापस पहुंचता है। No shoes, long unkempt hair, almost unrecognizable, and he stings from the pigs. सोरों के बीच में उनका दुर्गंध अब उसका हो गया है। उसके बाल कटे नहीं हैं, दाढ़ी बड़ी सी है और जूते हैं नहीं, वो उसको देखने में परिचित, अब लोग जो उसके पहले थे उसको परिचय में वो ना नहीं आ पाते। Have you seen those videos wherein somebody doesn't take bath for years and then they undergo a change and how different they look? आपने वीडियो तो नहीं अगर देखा हो, लोगों को देखा होगा जो नहाते धोते नहीं है। But while he was still a long way off, his father saw him. मतलब कहने का मतलब, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 20 से आगे जब हम देखते हैं, पिता ने उसको दूर से देखकर उसको पहचान लिया। वो पहचान में नहीं था, मतलब दिखने में काफी कुछ बदल सा चुका था, वो इंसान ही नहीं दिख रहा था। How did he see him? तो उसने कैसे देखा? Because he was looking for him. उसने इस पुत्र को इसलिए देख लिया, जान लिया, क्योंकि वो उसकी खोज में था। And he felt compassion. और वो वहां पे तरस खाता है and ran. और वो वहां पे दौड़ता है। Do you know that patriarch in the Middle Eastern culture do not run? तो अगर उस संप्रदाय की जो पिता होते हैं, घराने के जो प्रमुख होते हैं, पिता जो होता है, वो कभी भी इस प्रकार से प्यार का प्रकटीकरण नहीं करेगा, दौड़ भाग नहीं करते हैं। Do you know how when they wear this long robe, you know, they have to lift that robe and run. और क्योंकि वो लंबे वस्त्र पहनते थे, तो दौड़ भी लगाना इतना आसान नहीं, जब तक कि वो वस्त्र को थोड़ा अपने घुटने के ऊपर उठाए और दौड़ ना लगाए। And if that was to be seen, that nakedness, you know, that was considered shame in that culture. और उस आदर और अपमान के जो संप्रदाय में अगर प्रमुख घराने का प्रमुख ने अपने वस्त्र को घुटनों के ऊपर उठाया, तो वो एक अपमान रूपी प्रकटीकरण है। And he embraced him and kissed him. परंतु पिता ने ये सब ना सोचते हुए, दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास जो चला गया था, उसके पास गया और उससे गले लग गया। The Greek word mentioned there is that he kissed him again and again and all over. गले लगने का वो जो यूनानी भाषा में जो उसमें प्रयोग किया गया है, यानी एक बार गले लगना नहीं, बार बार उसको चूमता रहा। And verses 21 onwards to 24, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand, a shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it. Let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. Repentance is not just prayer, but it is also action. यहाँ पे मन फिराना जो है, सिर्फ एक दुआ करना नहीं है, परंतु एक क्रिया है, एक चलता हुआ, एक बढ़ता हुआ क्रिया है। He arose. What did he do? He got up, he arose and
he came to the father. आप जानते हैं वो बालक क्या किया, वो उठा, वो पिता के पास आया, And when he prayed and when he was thinking about what he will tell his father, he was ready to pay the restitution. तो जब वो पिता के पास आने से पहले वो कहा कि जो कुछ भी होगा वो उसको बकाया जो पिता का उसने लिया है शायद वो वापस कर देगा। And it is said, it is not like if somebody goes from our house and it comes back and it stays within our house. That is not how the culture was there. वहाँ की संप्रदाय उस प्रकार नहीं कि जो हमारे घर में हो रहा है वो हमारे घर में ही सीमित है, बाहर नहीं जाएगा। So if a son goes like this and comes back, everything would be very public and he would be even flogged, so that it serves as a lesson for everyone else. तो अगर एक पुत्र जो है वो चला जाता है उस संप्रदाय में, उस मध्य पूर्वी संप्रदाय में, तो जब वो पुत्र वापस आए तो पूरा जो गांव है इसका एहसास करता है, उनको उनके सामने ये सारी बात प्रदर्शित होती है और पंचायत बैठती है और शायद उसके ऊपर एक न्याय भी वहां पे पंचायत निकाल सकता And है। he has to work till a time when he is able to pay back what he has squandered. और न्याय में ये होता है कि बालक से ये कहा जाएगा कि तुम काम करो और तब तक काम करो जब तक जितना तुम लेके गए उसको तुम बकाया ना कर So he लो। was ready for that. तो वो उसके लिए तैयार होके जाता है, But what happens? परंतु होता क्या है, What he was not prepared is how the father is going to react and how he is going to take him back. वो इसके लिए तैयार होके जाता है कि मैं कमाऊंगा वापस कर दूंगा, परंतु उसके लिए नहीं तैयार होके जाता जैसे इसके पिता ने प्रतिक्रिया जाहिर किया है। Is there a difference between what he eventually prepared and what he said? तो फर्क है क्या जो उसने सोचा मन में कि मैं पिता के पास जाके ये बोलूंगा, और जब वो बोलता है आखिर इस दोनों वक्तव्य में क्या फर्क है? He did. What did he leave out? तो जब वो पिता को आखिरकार मिलता है जो उसने सोचा था बोलने के लिए और जो वो बोलता है उसमें क्या फर्क क्या है? Hired servant. He said that he leaves out that I would work as your hired servant or take me in as your hired servant. तो वो right? जो सोचता है कि मैं अपने पिता से मिलते वक्त ये कहूंगा कि मुझे सेवक माफी ले लो, उस बात को जब वो आखिरकार पिता से मिलता है वो उस बात को कहता नहीं, छोड़ देता है। You know why? क्यों? Because he saw and he experienced the compassion of the Lord and his father and saw it in action, and he saw that the reconciliation was complete, granted forgiveness fully, and the sonship was restored. तो वो क्या देखता है कि उसको उसके पिता के प्रेम को देखता है, उसके पिता के मेल मिलाप के प्रयास को देखता है, उस पिता के दीन दया दृष्टि को वो देखता है, अनुभव करता है, यानी उस पिता के प्रेम का वो अनुभवी हो जाता है और वो उमड़ता हुआ प्रेम का अनुभवी है। एक बार गले लग के छोड़ देना नहीं, बार बार उसको अपने पास रखना, उसको चूमना, उसका वो अनुभवी बनता है। He understood very clearly and immediately that he could not earn his way back to sonship. तो वो इस बात का उसको बात समझ में आ गई कि इस रिश्ते में वापस जाने के लिए वो अपना मार्ग अपने उस पुत्रत्व को वो कमा नहीं सकता है। We need to understand that sonship is given, we don't earn it. हमें इस बात को समझना है कि पुत्रत्व दिया गया है, देन है, दान है, उसको हम कमा नहीं लेते हैं। For the longest time, the parable of the prodigal son, as we call, the only thing that we ever heard in our growing up years was that there was this wayward son. He went out, he came back, father was very joyful, there was a party and rejoicing, that's it. अक्सर इस दृष्टांत को जब मैंने सुना है अपने बचपन से, बस यहीं तक सुना है कि एक ऐसा लड़का था जो चला जाता है पिता को छोड़कर, उसके पैसे लेकर, और वो जाके जब एकदम ख़त्म हो जाता है तो वो वापस आता है, फिर वहाँ पे बहुत पार्टी होती है और वो कहानी ख़त्म। But this is the heart of this parable. परंतु जो आगे बोलने जा रहा हूँ ये इस दृष्टांत का केंद्र बिंदु है। This is what Jesus was trying to get through while he was talking to the Pharisees and the scribes. तब जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहा है? उन फरीसियों से, उन शास्त्रियों से जो धर्म के अगुए हैं, जो धार्मिक हैं। Now his verse 25, now his older son was in the field, and as he came,
and drew near to the house. He heard music and dancing. तो पार्टी तक तो हम सबको मालूम है। आगे जरा देखिए 25वें आयत से आगे जब बढ़ते हैं तब बड़ा वाला पहलौटा जो था, जेठा पुत्र जो है, वो अपने खेत से वापस आता है। Strange, isn't it? The entire village is here, the son isn't. मतलब ये एक रोचक बात सी नहीं है, एक विडंबना सी दिखती है कि भाई गांव पूरा उपस्थित है परंतु बड़ा बेटा जो है कहीं पे नहीं है, वो खेत से वापस आ ही रहा है। The son stays in the house, but he's not there. ये पुत्र जो है वो अपने पिता के साथ है, परंतु घर में क्या हो रहा है उस समय, वहां पे खुशी का जो माहौल जो बना हुआ है वो उससे ओझल है, वो उसको दिखता नहीं है और वो गायब है। Shows the relationship that he had with the father. वो इस बात का गवाह है, इस पुत्र की प्रतिक्रिया इस बात का गवाह है कि उसका उस पिता के साथ रिश्ता कितना घनिष्ठ नहीं था। He was living isolated from his father while living in the same house. वो एक घर में, एक घराने के अंग थे, पिता का पुत्र था, पिता के घर में उसका निवास था, परंतु वो एकाई जीवन जी रहा था, पिता से उसके मन से कोई जोड़ नहीं था। And as we read from verse 26 to 32, when we come to and we see that he tries to understand what's going on, and then what is his reaction? जब आप 25 से आगे अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि वो दूसरे एक सेवक को बुला के पूछता है, आखिर हो क्या रहा है, इतना जोर शोर क्यों, क्या हो गया ऐसा। Verse 28, but he was angry. और जब उसको बताया गया कि तेरा भाई वापस आ गया तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी है बड़े बेटे की, वो गुस्सैल हो गया। I do recall, asking this question back in my Sunday school days to somebody I don't exactly recall. मैं अपने संडे स्कूल अध्यापक जिसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, उनसे मैंने पूछा कि बड़ा बेटा गुस्सा क्यों हुआ। And the response was, what? It's very human, isn't it? जो प्रतिक्रिया मुझे मिली वो था कि ये तो स्वाभाविक है ना, घर में दो भाई, अगर ऐसा हो अभिषेक के लिए बछड़ा घटे तो फिर स्वाभाविक है कि मेरे को गुस्सा आएगा। अब कल सुबह मैंने बिरयानी खाई तो अभिषेक इस बात से परेशान हो गया। Do we put ourselves into the story and in the context to understand that we will treat this as a very genuine anger, isn't it? जब आप इस कहानी को समझने लगेंगे तो इस प्रतिक्रिया को आप उसके साथ बैठ सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि प्रतिक्रिया जायज सा दिखने लगेगा। And he refused to go in. और वो जैसे शादियों में कुछ लोग बुलाते हैं और वो उनको मन मूड जाता है तो वो बाहर खड़े हो जाते हैं, वैसा ही ये बड़ा वाला जो है वो बाहर खड़ा हो गया गेट के बाहर। फूफा जी। हाँ, फूफा जी। What does his anger do? ये गुस्सा क्यों है और गुस्से में क्या कर जा बैठता है? He moves on to disrespect his father. It was not just an action, he also goes to say what? He says, look. He doesn't say father. What do you say? Suno. यहाँ पे वो अपने पिता को पिता करके संबोधित नहीं करता है, कहता है देख तूने क्या किया। Verse 29, look, these many years I have served you and I have never disobeyed your command, yet you have never given me a young goat that I might celebrate with my father, is it? ये 29वें पद को देखिए, 29वें पद को देखिए, क्रोध की भाव है इस कथन में, इस वक्तव्य में। इसको आराम से नहीं पढ़िए, क्रोध के भाव में पढ़िए, गुस्से से पढ़ने की कोशिश करेंगे तब आपकी उसको तीव्रता समझ में आएगी। देख, मैं इतने वर्षों से दास के समान तेरी सेवा करता आया हूं, तूने क्या किया मेरे लिए। इस क्रोध के भाव से पढ़िएगा। That I might celebrate with my friends, not with you. कि मैं इतना अच्छा सेवक रहा हूं, तेरा काम इतना मैंने अच्छा किया, मैं एक अच्छे पुत्र किरदार निभा चुका हूं और मैं अपने मित्रों के साथ बाहर नहीं जा पाया, एक दिन पार्टी नहीं कर पाया। मैं 24 घंटे काम करता हूं, थोड़ा तो बनता है ना मेरा। Another interesting thing we see in verse 30 is that what does he continue to rant and say? But when the son of yours came, who has devoured your property with prostitutes,
you killed the fattened calf for him. Did the elder brother go and meet the younger brother to understand what exactly was he doing? आप तीसरी आयत को पढ़िए, वहां पे वो एक इंफॉर्मेशन सूचना जोड़ता है। आप ये सोचिए कि ना तो उसने जाके देखा वो छोटा भाई कहाँ है, ना उसके पीछे गया, कुछ नहीं किया, फिर भी एक सूचना उसके बारे में जोड़ देता है। कहते क्या है, परंतु तब जब तेरा छोटा वाला वापस आया तेरी संपत्ति वैश्यों पर उड़ा देने के बाद तुमने उसके लिए मोटा बछड़ा काट दिया। Who says this? It's his understanding of what would have happened. अब छोटे बालक के साथ क्या हुआ ये सूचना उसके पास पुख्ता सूचना तो है नहीं, तो उसने अपने छोटे भाई के जीवन के बारे में एक अनुमान सा लगा दिया और उस पर एक छाप मोहर छोड़ दी, कहे कि ये इसने क्या किया, इसने अपने पैसे वैश्यों के साथ बिता दिए। This is the reality of human heart, is that in that moment of anger, he bared out exactly what he would have done if he would have got that freedom of money. तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे अपने छोटे बालक के बारे में सूचना देते हुए यहाँ पे बड़ा वाला बच्चा जो है क्रोधित होके अपने दिल की भड़ास को, यानी भड़ास ही नहीं, अपने दिल की वो मनसा जो कर नहीं पा रहा है उसको ही उगल देता है। 25 to 32, this is the heart of the parable that Jesus tries to get through to the heart of the good people, that the religious elite that the society recognized then. यहाँ पे आप देखिएगा कि ये उन लोगों के बारे में है, शास्त्रियों के बारे में, धार्मिक अगुओं के बारे में, प्रचारकों के बारे में, पासवानों के बारे में, जो अपने आप को बहुत ही अहम और बहुत धार्मिक समझने लगते हैं। उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके कार्यों में, उनके क्रियाकर्मों में नहीं, उनके दिल तो मुझसे बहुत ही बेहद दूर हैं। What Jesus truly reminds us this morning is that the truly lost are the ones who don't realize their need for the Savior. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहता है? कहना वो चाहता है कि ये धार्मिक शास्त्री और फरीसी, इनका जो समस्या है वो ये कि वो प्रभु से बहुत दूर हैं और इसका एहसास उनको नहीं है। उनके पास तो सही मुद्दा भी नहीं है। बड़े बालक की मुद्दा क्या है? कटे हुए छोटा सा बछड़ा, ये वो मुद्दा है उसका। You know why this is potentially offensive? ये ऑफेंसिव सा क्यों है? ये ऐसा एक ऐसी बात क्यों है जो प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, मांगती है? Where would the Pharisees go today? फरीसी जो है आज कौन से श्रेणी में आएंगे? No, where will they go today? Like, if they were in today's time. अगर आज के समय अंतराल में होते, फरीसी आज होते, तो वो कहाँ जाना पसंद करते? They go to the church. वो चर्च जाना पसंद करते, But that's their identity. क्योंकि वो उनकी अस्तित्व है, वो उनका पहचान बन जाता। They do the right things. वो एकदम सही सटीक चीज करते, They read the Bible. वो बाइबल पढ़ रहे होते, They do everything right. वो अपने हिसाब से सब कुछ एकदम सफाचट बढ़िया, At least what is visible. परंतु दिखने तौर पर सब कुछ एकदम सटीक। You know, somebody was saying this, that if you have seen the Middle Eastern folks, they wear this a turban kind of thing, and then they have something that also extends till their eye. अगर आपने देखा होगा जो अरब के लोग हैं वो एक पगड़ी सा बांधते हैं और फिर उनके सामने एक ऐसा होता है जो उनके क्या बोलते हैं, आंखों के ऊपर तक आता है, माथे पे। So maybe not the Arabs would do it today, but in those times the Pharisees definitely did. You know why they used to do? They would extend that near to the eye. You know why? So that they don't even gaze upon a woman. वो ऐसा जैसे घोड़े को पहनाते नहीं है, उसी प्रकार से कुछ ऐसा पहनते थे ताकि कोई स्त्री को गलती से भी ना देख ले। So they were very intent in the way they used to practice law. तो मतलब नियम का परिपालन वो इस प्रकार करते थे कि मतलब पूर्ण सटीकता से, उसमें कोई कमी घटी नहीं होनी चाहिए। They were the good people. वो ऐसे लोग थे जिसको आप अपनी पड़ोसी बना सकते थे। And that is why this is hard and offensive, and this is something that we need to
Pause for a moment today, this morning, as we lean into understanding why we can be in such a trap. परंतु यहाँ पे इनके जो आवरण को प्रभु यीशु मसीह इसकी चीर फाड़ करके उनके पाप को दर्शाते हुए यहाँ पे उनको साफ दिखाता और ये उनको कतई पसंद नहीं आता। Where in our sense and understanding of our own self-righteousness, we start to look down on others. क्योंकि हम अपने में ही स्वयं में इतने धार्मिक बन जाते हैं अपने कार्य प्रवृत्ति के द्वारा कि हम एक दूसरे को हम नीचा देखने लगते हैं। And it is not long before you fall into the trap of pride, anger, resentment and indignation. और ये दूर नहीं होता जब आप स्व धार्मिक बनने लगते हो कि आप में क्रोध और विद्वेष और लोगों के प्रति एक हिंसा रूपिक आत्मा आप में उगे ना। He thought he obeyed the rules and hence he deserved a blessing. उसको लगा कि उसने तो कार्य औपचारिकता में नियमों का पालन किया है इसलिए अब उसको वो वरदान योग्य है। Yesterday we were talking about this in the meeting. कल हम इस बारे में बात कर रहे थे शाम के अध्ययन में। Does God owe us anything? कि क्या प्रभु हमारे लिए कोई कर्जदार है कि क्या उसको ऐसा है कि वो हमें कुछ वापस देना है उसके पास हमारा कुछ ऐसा उसके पास है। How sad it would be in a relationship if it is just on the merit of being deserving, or you go into that relationship with a mentality of owing somebody either by doing or even by expecting. तो ये कितना बड़ी त्रासदी होगा कि आप एक ऐसे रिश्ते में जाते हो ये सोच के कि क्या वो आपका कर्जदार है या आप उसके लिए एक दान सा एक फेवर सा आप उसके लिए ऐसा कुछ कर रहे हो, एक जिसे कहते हैं क्या कहते हैं एहसान कर रहे हो। One of the litmus tests that we can do for ourselves is that do we pray prayers like, oh God, why have you been unfair to me? I have been following you so diligently. कई बार जब हम मुश्किलातों में फंस जाते हैं तो हमारे मुख से ये निकल जाता है, प्रभु क्यों आप मुझसे ऐसे पेश आ रहे हो, क्यों आप मुझे ऐसी परिस्थितियों से भेज रहे हो। Why are you so unfair to me? I am much better than this other brother. I should have got that job. Why does he get it? मैं तो सुबह क्वाइट टाइम करता हूँ, शाम को प्रार्थना करता हूँ, गाना भी गाता हूँ, दूसरों को प्रचार के माध्यम से सुसमाचार भी सुनाता हूँ, तो फिर आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो उस भाई की तरह नहीं हूँ, मैं अभिषेक की तरह थोड़े हूँ। I've been working for years, but I have not got that promotion. Why is it so unfair to me? मैं इतने साल उस रोल में काम करता आया हूँ और मेरे नीचे जो ज्वाइन किया था बंदा वो आगे निकल गया और मैं वहीं का वहीं रुक गया। ऐसा तुम मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मैंने तो घूस भी नहीं लिया है। That is how the elder brother felt in the house. That is how he was operating basically, isn't it? परंतु यहाँ पे आप इस भाई के तौर तरीके को देखिए। इस प्रकार से सब कुछ सही कर रहा है, धार्मिक है, अच्छा लड़का दिखने में है, परंतु किस मनसा क्या है, अंदर की बात क्या है। All these years I have been slaving for you and you never gave me even a goat. आप ध्यान दीजिए, पिता के घर में वो कहता है कि हे पिता, मैं तेरे घर में इतने साल काम which is the verse 29वें आयत में देखिए, मैंने इतने वर्ष तेरे घर में सेवा किया है। छोटा बालक कहता है जब वो वापस आ रहा है, क्या कह रहा है कि I will become your hired servant, कि मैं वापस आके सेवक बन जाता हूँ। बट यहाँ पे बड़ा बालक जो है वो इतने साल से सेवा ही कर रहा है। Yeah, that's the irony of it, or that's the tragedy of this. ये पुत्र नहीं है, पुत्र की भाषा नहीं है, वो सेवक की भाषा बोल रहा है। मुआवजा दो, मुझे मुआवजा चाहिए, पुत्र नहीं बोल रहा है। The young one went out demanding what? That father, I need your stuff, I don't need you. छोटा वाला गया, कहा कि मेरा तुम भाग दो, मैं चला। What does the elder brother do and demand? यहाँ पे अच्छा बालक जो है, बड़ा बालक जो धर्मी है, घर में रहकर क्या वो उसकी मांग क्या है? What is he eventually saying? That I want your stuff, I don't want you really.
वो आखिरकार इतने साल पिता के साथ रहने के बावजूद भी, वेश्याओं के साथ समय ना बिताने के बावजूद भी कहता है पिता बस मुझे मुआवजा दो, मेरा भाग दो, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। That's why I've been so good. इसलिए मैं अच्छा बना बैठा हूं, That's why I've been taking care of you. और इसलिए मैं तेरी सेवा कर रहा हूं, That's why I've been looking after the farms. इसलिए मैं आपके खेतों का मैं देखभाल कर रहा हूं। You know why was he angry? वो क्यों गुस्से में था, क्रोधित क्यों था? The 1/3 was squandered away. कि 1/3 तो उड़ गया, Now the 2/3 which is left is again going to be divided because now he is restored back to full sonship. Isn't क्योंकि it? पुत्र, छोटा वाला पुत्र वापस आया, उसने 1/3 तो उड़ा दिया। अब जब वो आया तो ये 2/3 को भी अब बंटवारा होगा, उसमें से जाएगा जो 2/3 इसका बनता है। You will be okay with that? आप सोच के बताइए। He thought his brother's sinfulness. अनुष्का सिर हिला रही है। Obviously not. He thought his brother's sinfulness was unforgivable. वो उसने सोच लिया कि मेरे छोटे भाई का पाप जो है उसकी माफी नहीं की जा सकती है, वो गंदा है, वो गंदा ही रहेगा, वो पुत्र नहीं बन सकता है। We come across people where we also think that this person is unredeemable. I mean, this guy absolutely doesn't deserve. हम कुछ लोगों को देखते हैं और कहते हैं ये तो बियॉन्ड रिपेयर है, इसका हम कोई भी मरम्मत के बाहर है। You know, this is the most interesting thing, that when God paints the picture of the younger son, he projects the most vilest of sinners possible in terms of the imagery at that time. तो वहाँ पे जो जब ये दृष्टांत बताया जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के उस निपुणता को देखिए, इसको बताने का तौर देखिए, तरीका देखिए, इस प्रकार से पेश किया जाता है जिससे कि छोटा वाला बालक जो है उसकी जो इमेज है, उसकी जो चरित्र को इस प्रकार रखा गया है कि लोगों को वहां में समझ में आता है कि इससे घिनौना पापी और कोई नहीं हो सकता है। And you and me need to understand that how God, the Father, deals with that vilest of sinners. आपको ये और हमें समझना चाहिए कि सबसे घिनौना पापी के साथ पिता इस कहानी के अनुभव में कैसे पेश आता है, हम जैसे पापियों के साथ हमारा पिता कैसे पेश आता है। All of us here have that one person whom we struggle to forgive. हम यहाँ बैठे सब जनों में जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हम माफी नहीं दे पाए हैं। We struggle. कि हम अपने जीवन में उस कश्मकश में हैं कि माफ करें कि नहीं करें। In your eyes, he might be the vilest or she might be the vilest. आपके आंख में, आपके दृष्टि में वो या वो पुरुष या वो स्त्री सबसे घिनौने पापियों में गिना जाएगा। We need to start seeing how the Father sees that person. परंतु मैं आज आपके साथ आपसे आह्वान करता हूं कि पिता की दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण बनाएं। And one of the other last things that he says, he resented his father's joy and refused to share in it. और वहां पे हम देखते हैं कि पिता के उस उल्लास में, उस खुशी में शामिल होने से उसने अपने आप को इनकार कर दिया, उसने इनकार कर दिया, पिता का इनकार किया है उसने। How does the parable end? इस दृष्टांत का अंत कैसे है? The elder son goes in. Jesus stops there, isn't it? प्रभु यीशु मसीह वहीं रुक जाता है। आप अगर इस दृष्टांत का ध्यान देंगे तो ये ऐसा खत्म होता है जैसे कि आगे कुछ था परंतु वो वहां पे रोक दिया गया, कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं किया गया। As we conclude, this is exactly what Jesus is trying to say. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है There are two ways in which you can be your own Lord and Savior. कि तुम दो तरीके हैं, दो मार्ग ऐसे हैं जिससे कि तुम अपने ही उद्धारकर्ता बन सकते हो, अपने ही प्रभु बन जाओगे। The younger brother way, it is through self-discovery, and you want to go out and try out, and you want to be on your own, and you try to control the Father by living a very, very bad life. आप या तो वो वाला मार्ग जैसे छोटा बालक ने लिया कि अपनी खोज में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम अपने तौर तरीके में जिएंगे, अपने मन का चलाएंगे, वैसा वाला मार्ग। And the elder brother way is the second one. दूसरा मार्ग कैसा है? जैसा जेठा पुत्र का मार्ग Is the life of moral conformity, and you try to control God and try to get from God what you want from Him through obedience. अच्छा करेंगे, अच्छा बनेंगे, अच्छा
प्रस्तुत करेंगे, कार्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, चर्च जाएंगे, ये सब जाएंगे, पर क्यों करेंगे? Jesus says क्यों that करेंगे? इसलिए करेंगे कि इसमें से हम प्रभु को अपने पिता के हाथ को निचोड़ के कि भाई देख मैंने तेरे लिए इतना किया, अब तू दे, ये स्टाइल हो जाएगा। Jesus says both are lost प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि दोनों ही खोए हुए हैं and both need the initiating and the seeking love of the Father. और दोनों को क्या जरूरत है? पिता के प्रेम का अनुभव जरूरत है। Do you see that the Father goes out to both the sons? आप यहाँ पे देखिए, दोनों के पास पिता जाता है, He runs to the younger one वो छोटे वाले के पास दौड़ लगा के जाता है and he comes out of the house to do what? To plead and get his son inside. और बड़े वाले पुत्र के लिए वो घर के बाहर जाता है, उसे निवेदन करता है। It is very important for us to know that Jesus did not come to make bad people good. He came to make dead people alive. हमें इस बात को जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि जो खराब हुए मनुष्य हैं उनको अच्छा कर दे, परंतु वो जो मरे हुए थे, पापों में खोए हुए थे, उन्हें खोजे और उन्हें जिलाए। And Jesus says that you need to repent for something besides the sin. आप प्रभु यीशु मसीह कहता है सिर्फ पाप से ही अपने मन को मत फिराओ। The younger brother had visibly lot to repent for. छोटे बालक के पास ऐसा काफी उसने हादसाएं कर रखी थी जो स्वाभाविक तौर से उसे मन फिराना था, पाप की अंगीकार करनी थी। And possibly we might say, yeah, I mean, that's the right thing to do. और ऐसा तो करना चाहिए कि आपने अगर जिन्होंने काम किए हैं तो उसे मानिए और मन फिराइए। But the elder brother is lost too, but there is nothing on the list. परंतु बड़ा वाला जेठा पुत्र जो है वो भी खोया हुआ है, पर उसकी ऐसी कोई सूची नहीं है जो उस पे दिखा के बोले हाँ चल इस बात में मन फिरा, इस पाप को अंगीकार कर ले। उसने तो सब कुछ सही किया है। He says that I have always obeyed you, and do you see the father refuting it? He doesn't. उसने कहा है कि यहाँ पे बड़े वाले बालक ने पिता से कहा कि मैंने हर वक्त तुझे तेरी आज्ञा मानी है। How does a person who has not sinned get saved? तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास सर्टिफिकेट हो अपना ही कि मैंने पाप ही नहीं किया है, तो उसको कहाँ से उद्धार दिया जाए और किस पे से उद्धार दिया जाए? Of course, there is no one like that, isn't it? That's the point. सामान्य बात समझिए कि ऐसा है कोई नहीं जिसने पाप ना किया हो, जिसमें पाप के असर निवास ना करते हो। Romans 3 we read, all have sinned and come short of the glory of God. इसलिए रोमियो के पत्री पौलुस कहता है 3 अध्याय 25वें आयत में कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए हैं। How, to the degree that you would have wavered might vary, but the fact is that we have gone away from the Father. इस बात की पुष्टि है, ये तथ्य है कि हमने पाप किया है और हम परमेश्वर के साथ जो रिश्ते में पिता पुत्र पुत्री रिश्ते से हम टूट चुके हैं और हम अलग हो चुके हैं और हम उससे दूर चले गए हैं। Tim Keller in his book Prodigal God, if you have a chance, do read it. It's absolutely a life-changing book. टिम केलर नामक एक प्रचारक ने किताब लिखा है, उसका शीर्षक उसने रखा है प्रोडिगल गॉड के नाम से। And he says that the Pharisees only repented of their sins, and they were very, very particular about it. They would repent, but the difference is that Christians, in addition to repenting of their sins, also repented of the reasons they do good deeds. यहाँ पे टिम केलर कहता है कि फरीसी जो हैं उन्होंने खड़े होके अगर उन्होंने पाप किया, बड़े जोर शोर से वो अपने पाप का अंगीकार करते हैं और मन फिराते हैं, परंतु केलर कहता है कि मसीह जो हैं सिर्फ पाप की सूची को रखकर ही अंगीकार नहीं करते हैं, परंतु अपने अंदर हुए स्वयं अच्छाई का, अपनी भलाई का, जो हम कहते हैं जिसमें हम नाज करते हैं अपने ऊपर कि हम तो इतने अच्छे इंसान हैं, उससे भी आप मन फिराइए। Pharisees followed God to get the blessings, while Christians follow God to get God. फरीसी जो हैं परमेश्वर का पीछे वो इसलिए थे, धार्मिक कार्य उन्होंने इसलिए किया कि उनको भौतिक आशीषें मिलें, परंतु मसीह जो हैं वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह का पीछा इसलिए नहीं करते कि हमें भौतिक आशीषें मिले, परंतु हम इसलिए करते हैं कि हमें प्रभु मिले।
In a moment, we are going to partake of the emblems of the table. कुछ समय में हम इस मेज पे रखे इस रोटी और प्याले से हम भागीदार होंगे। We remember the cross. हम उस क्रूस को याद करेंगे और कर रहे हैं। On that we see the true elder brother. वहाँ पे हम एक सच्चे जेठा भाई को देखते हैं, बड़े भाई को देखते हैं। What should have the true elder brother done? उस संप्रदाय में सच्चा बड़ा भाई क्या करता? Or if he would have known his father's heart, अगर उसने अपने पिता के दिल को जाना होता, he would have left home to find his brother. वो घर से निकलता, पिता के दिल को जानता, घर से निकलता, छोटे भाई की खोज करता। But on that cross we see Jesus Christ, our true elder brother. उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह रोते हैं, कराहते हैं। हमारा 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 बड़ा भाई, The one who left his father's home जिसने अपने पिता के घर को छोड़ा to seek us कि हमें वो खोजे, and bring us back to the father's home. कि हमें वो पिता के घर वापस लेके आए। Not at the cost of his inheritance or property, उसने अपने अपने not at the cost of his inheritance वो or वो property, अपने अपने जायदाद को छोड़कर नहीं, उसका दाम देकर नहीं, but his own life. उसने अपने जान के, अपने प्राण की हानि देकर। Jesus was stripped naked on that cross so that you and me could be clothed in the robe of honor which we never deserved. प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर नंगा किए गए, निर्वस्त्र किया गया है कि हमको वो धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाए जो हम कुकर्म में पड़े थे, हम जो नंगे हो चुके थे, उसको धार्मिक कहा जाए। On the cross he cried, my God, the only time he didn't call him father because he wasn't treated like his son. उसने उस क्रूस पर रोया कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। The only time he didn't call him father उसने उस वक्त में अपने उस परमेश्वर को पिता नहीं माना, पिता नहीं संबोधित किया, because he wasn't treated as a son so that you and I could be. कि उसको इसलिए क्योंकि वहाँ पर वो पुत्र और पिता का रिश्ता नहीं रहा, ताकि हमें उस रिश्ते में बांध लिया जाए। There he paid the debt we deep down know we owe, but we could not repay. वहाँ पे उसने उस उधार जो हमारे पर, जो कर्ज हमारे पर था, उसको उसने बकाया। He had everything that the father has and he shares it with us and brings us home. वो जो पिता का है वो हमारे साथ बांटता है और हमारे दिलों में वो दे देता है, And it comes at an enormous expense of himself. और वो सब उसके प्राण को देने पे है। And to the extent that you and me would see this morning, और आज की सुबह जब हम इस बात को देखेंगे, that is what it is going to take for us to be changed as Christians today. तब हम आज सच्चे मसीह तब बनेंगे। And we really understand what our true motivation is to follow God. Is it for the stuff or is it for the heart of the Father? तब हम समझ पाएंगे कि हमारा मसीह बनने का कारण भौतिक आशीषें नहीं है। हमारे मसीह बनने का कारण सिर्फ इतना कि हम अपने पिता के पास हैं। We need to be reminded of this gospel every day. इस सुसमाचार हमारे दिल को हमें याद दिलाना जरूरी है, और हर एक दिन दिलाना जरूरी है। Why? क्यों? 1 Timothy 1 and verse 15. पहला तिमोथी 1 उसका 15वां आयत, Can somebody read that? कोई उसको पढ़ दे। The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. What's the tense used there? Does Paul say, I was क्या a sinner? प्रेरित पौलुस प्रभु यीशु मसीह का चेला अपोस्टल जो है, प्रेरित जो है, क्या वो ये कहता है कि मैं पापियों में सर्वप्रथम था? What does he say? I am. वो कहता है मैं हूँ पापियों में सर्वप्रथम That's हूँ। the reality of who we are in this sinful world. इस पापी जगत में ये अस्तित्व है, ये सच्चाई है कि हम पापी हैं। And the reality of Christian life is that at some point in time we will always swing between the younger brother and the elder brother characteristics. कि सच्चाई ये है कि हमारे में दोनों भाइयों के अभाव दिखेंगे।
कभी हम अच्छे बालक बड़ा बेटा बन जाएंगे और कभी हमारे प्रवृत्ति छोटे बेटे जैसा हो जाएगा। Well, let this be our prayer, which psalmist says in Psalm 19, verse 12 to 14. But who can discern their own errors? Forgive my hidden faults. Keep your servant also from willful sins, that they may not rule over me. Then I will be blameless, innocent of great transgression. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. भजनकार 19 में कहता है कि तुम मुझे मेरे छुपे हुए पापों से बचा और मुझे शुद्ध कर और मुझे अपने पास रख। मेरी ये जो प्रार्थना है आपके लिए योग्य हो। The question that we need to move away is that how is our relationship with the Father? सवाल ये कि हमारे पिता के साथ, स्वर्गीय पिता के साथ हमारा रिश्ता है तो कैसे है? No matter how we are placed, जैसे भी हमें रखा गया हो, how deep the Father's love for us, इतना गहरा परमेश्वर पिता का प्रेम how vast beyond all measure, कि वो इतना, उसका फैलाव इतना है कि वो नापा नहीं जा सकता है। that He should give His only Son आप ऐसे समझिए फैलाव इसमें कि उसने अपने इकलौते पुत्र को, to make a wretch His treasure. कि हम जैसे निठल्लों को उसने अपना धन संपत्ति बना दिया है। That's the loving Father that we have. यह प्रेमी पिता हमारा पिता है। Do you need anything more? कि हमें क्या अब और भौतिक आशीषें चाहिए? May God bless the reading and the sharing of the word this morning. प्रभु आशीष दे।